a very old saying I'm sure that many of you must have heard of. एक बहुत ही पुरानी कहावत है और ज़्यादातर लोगों ने ये सुना होगा, मैं निश्चित समझता हूँ। Every good thing must come to an end so that a better thing may begin. हर एक अच्छी बात को समाप्त होना होता है ताकि बेहतर का आरंभ हो। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning it's our pleasure and privilege to present to you the 185th episode of the Quarantine Time Devotional. इस सवेरे के वक्त ये हमारा सौभाग्य है और खुशी है कि हम 185 नंबर क्वारंटीन वीडियो को आपके सामने या डिवोशनल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। India is facing the 5th stage of unlocking process. भारत देश में अनलॉकिंग का 5वां स्टेज शुरू हो चुका है। Many of you have gone back to your workplaces, आप में से बहुत लोग वापस काम करने जा रहे your हैं। businesses, आपके व्यवसाय wherever that you were before. व्यवसाय जो है आपका वापस शुरू हो चुका है, जो आप पहले करते थे। It's quite possible that many of you are even missing watching these और devotionals ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस डिवोशनल्स या इन डिवोशनल्स को नहीं देख रहे हैं because of your tight schedule. क्योंकि आपका स्केड्यूल बहुत टाइट हो गया है। So we thought, even as from the November 1st, this unlocking process is beginning. और हमने ये सोचा कि नवंबर पहले तारीख से जैसे ये अनलॉकिंग शुरू हो चुका We है, too will take a small break हम भी छोटा सा ब्रेक ले लेंगे and come up with better programs, और हम बेहतर कार्यक्रमों के साथ आपके सामने आएंगे much clearer, much better quality programs, और बेहतर क्वालिटी वाले प्रोग्राम्स, so that you may be edified in the Word of और God. जिसके जरिए आप परमेश्वर के वचन में बन जाए। But before we take the break, लेकिन ब्रेक लेने से I पहले would like to thank the Lord Almighty for giving us this grace to see through these 185 days. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने होने दिया कि हम इतने डिवोशनल्स को आपके सामने ला पाए हैं। Without His grace, we couldn't have done it day after day without stopping for 185 days. उनके अनुग्रह के बिना 185 दिन बिना रुके हम आपके सामने ये डिवोशनल्स को प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। Without His inspiration, it would have been next to impossible. उनके प्रेरणा के बिना ये असंभव ही था। We also would like to thank you from the bottom of our hearts, हम अपने हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक because यू, many of you are watching it and many of you are passing it on to others. क्योंकि आप में से बहुत लोग इन डिवोशनल्स को देखते हैं और दूसरों के साथ बांटते भी हैं। No, all of you are watching this आप devotion. सभी लोग डिवोशनल्स को देखते हैं And many of you are posting on your respective pages. और आप अपने पेजेस पे इसको पोस्ट भी करते हैं। Not just that, many of you are passing on to your loved ones. यही नहीं कि आप में से बहुत लोग अपने प्रियजनों के साथ भी इसको बांटते We हैं। deeply appreciate that. हम गहराई से इस बात को सराहते हैं। You are helping the word to spread. आप मदद कर रहे हैं कि वचन का प्रसार हो। On the day of rewards, you shall surely be rewarded for this in the name of प्रतिफल Jesus. के दिन आपको निश्चय इसका प्रतिफल मिलेगा मसीह के नाम से। So, before we take the break, सो ब्रेक लेने से पहले we would like to tell you something. हम आपसे कुछ कहना That चाहेंगे God is with you. कि परमेश्वर आपके साथ है। The one who has made you will never leave you nor forsake you. जिन्होंने आपको रचा है, बनाया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे। Yes, the days that we are going through are troubled times indeed. हाँ, जिन समयों से हम गुजर रहे हैं संकट के समय है तो In the troubled times, that the Lord still comforts us. संकट के समयों में भी परमेश्वर हमको सांत्वना देते हैं। How does He do it? कैसा करते हैं He ऐसा? does it in 4 ways. 4 प्रकार से करते हैं। This morning, in this particular devotion, we want to bring you the 4 ways that the Lord comforts each one of us in the times of trouble. इस सवेरे के डिवोशनल में हम आपसे बताना चाहेंगे कि परमेश्वर 4 प्रकार से कैसे हमको सांत्वना देते हैं। Number 1 is that He comforts us by His presence. पहली बात तो उनकी उपस्थिति के जरिए जो है हमको वो सांत्वना देते I do हैं। not know how many of you are aware of this truth or not. हम नहीं जानते कितने लोग इस सत्य से वाकिफ है That the Lord and His presence is enveloping you wherever that you're कि going. जहाँ कहीं भी आप और हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमको ढाकती है। The one who made you will never leave you nor forsake you. जिन्होंने आपको बनाया है वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कभी आपको त्यागेंगे I want नहीं। us to open our Bibles to Isaiah 43 verse 2. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे यशायाह की किताब 43 और दूसरा वाक्य। It says, when you pass through the waters, I'll be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले
तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। Listen to this, what God is saying in this place. यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं? He says that when you pass through the waters, waters will not overflow you. यहाँ पे वो कहते हैं कि जब आप जल से होकर गुजरेंगे तो वो आपको डुबा न सकेगी। When you pass through the fire, fire will not consume जब you. आप आग में से चलोगे तो भी उसकी आँच जो है आपको न लगेगी। Why is it so? Not because of anything else, it's because His presence is with you and His presence will not allow you to go through these ये things. इसलिए है क्योंकि उनकी उपस्थिति आपके साथ में है, और क्योंकि उनकी उपस्थिति आपके साथ में है आप इन चीज़ों से गुजर कर भी बिना कोई तकलीफ के आगे निकल जाओगे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning open your spiritual eyes and see the presence of God is enveloping you. इस सवेरे के वक्त आप अपने आत्मिक आंखों को खोलिएगा और देखिएगा कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको ढाके हुए है। This God who promised and said He will never leave nor forsake is with you. ये परमेश्वर जिन्होंने आपसे वादा किया है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे, वो आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, He comforts us by His word. दूसरी बात, अपने वचन के जरिए वो हमको सांत्वना देते हैं। Number 1, He comforts us by His presence. Number 2, He comforts us by His word. पहले तो उनकी उपस्थिति के जरिए हमको सांत्वना देते हैं, दूसरी बात अपने वचन के जरिए हमको सांत्वना देते I हैं। want us to open our Bibles to Psalm 119 verse 49 to 50. आइए अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे भजन संहिता 119 49 और 50। It says, remember the word to your servant, upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. लिखा हुआ है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। It says here, remember your word to your servant. लिखा हुआ है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है। This morning I want to remind you, इस सवेरे के वक्त मैं आपको याद दिलाना you चाहूँगा, are His servant. आप उनके दास हैं, You are His son or His daughter. आप उनके संतान हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, there is a word that has come concerning you. और आपको लेकर जो एक वचन आया हुआ है, All you need to do is nothing but just hold on to it. आपको ये करना है कि उसको कसकर पकड़ लेना है। The psalmist says that your word is what I hold on to. और वचन में लिखने वाला, भजन संहिता लिखने वाला लिखता है कि तेरे वचन को मैं पकड़ कर रखता हूँ। I love these particular verses in the Message Bible. It says, remember what you said to me, your servant, I hang on to these words for dear life, he says. लिखा हुआ है, जो वचन तूने अपने दास को दिया हुआ है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। Further down he says, these words hold me up in bad times. In your bad times, what holds you up, what you need to hang on is the word, the promises that He has made to you. आपके बुरे समयों में आपको काहे को धर के रहना है, उनके वचन को धर के रहना है, और जो वादा उन्होंने आपको किया हुआ है वो वादा को कसकर पकड़ लेना है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, in the troubled times, number one thing that He does is He comforts us with His presence. और संकट के समय में पहली बार जो वो करते हैं वो सांत्वना देते हैं उनकी उपस्थिति के जरिए। Number two, He comforts us by His word. उनके वचन के जरिए हमको सांत्वना देते हैं। Number three, that He comforts us in our prayers. हमारी प्रार्थनाओं में वो हमको सांत्वना देते हैं। Now open your Bibles to Psalms 138 verse 3. भजन संहिता 138 और तीसरा वाक्य। It says, in the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. लिखा हुआ है, तीसरे वाक्य में लिखा हुआ है भजन संहिता 138, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मुझे सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। In this world, many people pray. और इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, Not everybody have the privilege of their prayers being answered. और हर एक को ये सौभाग्य नहीं है कि उनकी प्रार्थना का जवाब उनको मिले। But this morning that you and I enjoy the great privilege of
our prayers being लेकिन answered. इस सवेरे के वक्त हमको और आपको सौभाग्य है कि हमारी प्रार्थना को जवाब हमारा परमेश्वर देता है, Because when we understand the will of God for our life क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ लेते हैं हमारे जीवन के and लिए align our lives with His Word और अपने जीवन को उनके वचन के अनुसार लगा लेते हैं and confidently go before Him और धैर्य के साथ उनके सामने जाते हैं and make those prayers that pleases Him, that you and I know that He will surely answer और us. विश्वास के साथ हम जब उनकी उपस्थिति में जाते हैं और वो प्रार्थना को करते हैं जो उनको प्रसन्न करता है, हम निश्चय जानते हैं कि वो हमको जवाब देंगे। They are not ordinary prayers, they are the prayers of righteous one, and you are that righteous one. ये सामान्य प्रार्थनाएं नहीं है, ये धर्मी जन की प्रार्थना है और आप वो धर्मी जन हो। It must avail much before God. परमेश्वर के सामने जो है ये प्रसन्ननीय है। So, in the times of trouble, संकट के समय learn to spend more time in the presence of God in prayer. सीख लीजिएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय को बिताएं प्रार्थना में। Number one, that He comforts us with His presence. पहले तो अपनी उपस्थिति से वो हमको सांत्वना देते हैं। Number two, He comforts us with His word. उनके वचन के जरिए हमको सांत्वना देते हैं। Number three, He comforts us with our prayers to Him. और हमको सांत्वना देते हैं जब हम उनको उनके सामने प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। Number four, He comforts us through godly friends and fellowship of saints. और चौथी बात जो है जो दैविक या परमेश्वर ने दिए हुए दोस्त और जनों के जरिए वो हमको सांत्वना देते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, how much ever tall figure that you may be in the spiritual, आत्मिक में जितने भी ऊंचे हस्ती आप क्यों न हो, we all must need the fellowship of saints. हम सभी को जो है संतों की संगति चाहिए होती है। We must need the godly friends with us. हमारे जरूरी है कि ऐसे दोस्त हमारे हो जो परमेश्वर के दिए हुए हो। You know, people like Paul received much comfort when they were in the fellowship. When they were out of fellowship, that they felt as though that they were dry. और पौलुस की तरह लोग जो है जब संगति में थे तब उन्होंने बहुत प्रोत्साहन को पाया और जब वो संगति से बाहर गए तो कहीं ना कहीं जो है वो कमी मुखामी महसूस हुई। I want us to open this morning to 2 Corinthians chapter 7 verse 5 to 7. See how Paul mentions something here in this place. दूसरे कोरिन्थियों की किताब में देखते हैं 7वां अध्याय 5वां वाक्य से 7वां वाक्य। Mind you, Paul was a very strong person spiritually. और आत्मिक रूप से आप ये बात को समझ लीजिएगा कि पौलुस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। He was a chief apostle. वो एक मुख्य प्रेरित थे। A man who had the credentials of planting many churches. बहुत सारे कलीसियाओं को उन्होंने रोका था। Look at this in this place. It says, "For indeed, when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears. Nevertheless, God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus." And not only by his coming, but also by the consolation with which he was comforted in you, when he told us of your earnest desire, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced even more. That's what Paul said very beautifully in this place. दूसरे कोरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 5वां वाक्य से 7वां वाक्य लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम ये पौलुस कह रहे हैं, जब हम मैकेडोनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाई थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दोनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारे लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का सुसमाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। My brothers and my sisters, Paul was in dire straits here. यहाँ पे पौलुस जो है बहुत ही खराब हालत में थे। He tells us his story, his problem here in this place. यहाँ पे वो अपनी समस्या को बताते He हैं says outside were conflicts, inside were fears. कि बाहर जो है लड़ाइयाँ थी और अंदर जो है भयंकर जो है बातें थी। You know, outside problems, inside problems. बाहर जो है समस्या थी, अंदर भी समस्या हो In रही the थी। midst of all that, Paul said that we received
comfort when Titus walked into us. ये सारी बातों के बीचों बीच हमको सांत्वना मिली जब तीतुस जो है हमारे बीच में आए। You know, when Titus walked in, he brought great comfort to Paul. और जब तीतुस आए तो उन्होंने पौलुस को उनके जरिए पौलुस को बड़ी शांति हुई। Also, when Titus brought this great report that how the church is missing Paul and his presence in among them, that made him to rejoice within himself. और जब तीतुस ने ये बात को सुनाया कि कैसे कलीसिया के लोग जो है पौलुस के धुन में है और वो जो है पौलुस को बहुत ही याद करते हैं या मिस करते हैं, तो उसको सुनकर जो है पौलुस बहुत ही आनंदित हुए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी I'm बहनों, sure that you're already experiencing that because from past 8 months you're not entered a church. और मैं ये समझता हूँ कि आप इसका अनुभव कर रहे हैं क्योंकि 8 महीने से हम कलीसिया नहीं गए हैं। We do not have the fellowship nowadays. संतों की संगति आजकल नहीं होती I'm है। sure that you may be craving for it. और मैं निश्चय समझता हूँ कि आपको ये लालसा होगी कि और आप चाहते होंगे कि आप जो है कलीसिया में आए संतों की संगति में। Church is something that the Lord has kept for each one of us to receive comfort from. और कलीसिया को परमेश्वर ने रखा हुआ है ताकि हमको और आपको सांत्वना मिले। Fellowship of saints is very, very precious for each one of और us. देखिए संतों की संगति जो है हम हर एक के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। As long as we are in the church, in the midst of godly people, in the fellowship of saints, that we will begin to grow and we will begin to grow. और जब हम जो है संतों की संगति में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनकी संगति में रहते हैं, तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। So I believe now this unlocking down process has begun. मेरा ये विश्वास है कि अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है, क्रिया है, वो शुरू हो गई है। I expect the churches also to open very soon. अपेक्षा ये है कि कलीसियाएं भी बहुत जल्द खुल जाएंगी। I want all of us to come together. हम इकट्ठे आएंगे। The ones who are listening to this message, go to your respective churches and spend the time there. जो जितने भी लोग डिवोशनल को सुन रहे हैं, आप अपनी कलीसिया में जाइएगा, वहाँ पे समय संतों के साथ बिताइएगा। You know, that would edify you, build you. उसकी वजह से हम बन जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, brothers and my मैं sisters, आपसे कहता हूँ I मेरे do भाई not मेरी know बहनों, what kind of a troubled time that you're going हम through. नहीं जानते हैं कि कौन से संकट के समयों से आप गुजर रहे हैं। If you keep these 4 things in अगर mind, इन 4 बातों को आप अपने मनों में रखेंगे, rather if you open your spiritual eyes to see these 4 things with you, अगर आप अपनी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलेंगे ये 4 बातों को देखने के लिए, I know that everything about you must change. हमारे बारे में सारी चीजों को बदलना होगा। Hallelujah. Hallelujah. With this, I want us to go out and spend a little bit more time in the presence of God as today is your weekend. इसके साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा ज़्यादा समय और बिताइएगा क्योंकि ये सप्ताह का अंत वाला दिन है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, myself and my wife very soon will be meeting you. मैं और मेरी पत्नी बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे We'll be coming to you with a lot of other programs. और बाकी सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपके पास We आएंगे। said all that we said in the beginning because we wanted you not to miss out as to what we want to see. सारी बातें जो हमने डिवोशनल की शुरुआत में कहा, इसलिए कहा ताकि आप जो है मिस न करें जो हम कहना चाह रहे थे। With these things in heart and mind, इन बातों को अपने हृदय में मनों में रखते I हुए want us to go into the day and into the weekend. दिन में जाएंगे और वीकेंड में जाएंगे, सप्ताह के अंत में जाएंगे। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं And He will watch over you. और वो अपनी नजर आप पर बनाए रखेंगे। Until next time, अगले बार तक see you soon. जल्दी आपको देखेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।